See, it is about Rutherford model. So it's a very simple arrangement like this. So we consider these as nucleus, and this is electron orbit. Nucleus and electron orbit. So see, the Rutherford nuclear model of the atom, which involves classical concepts, pictures atoms as electrically nuclear sphere consisting of a very small massive and positively charged nucleus at the center, surrounding by revolving electrons in respective dynamically stable orbits. So here I am considering hydrogen. I am considering hydrogen atom, simplest. So न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होगा. That's it. Now we consider this distance, center of nucleus to orbit distance as nuclear radius r. Then this mass of electron is m. उसका जो speed होगा that is v. So remember the terminology. R means orbit radius. M means electron mass. V means electron velocity. M means electron mass, V means electron velocity, R is orbit radius. E is electron charge. Now, the step which I am going to take just now is exactly similar to what you did in 11th standard in gravitation chapter. ये इसका orbit maintain होगा electron का because of the balance of the two forces. Which two forces? एक है pseudo centripetal force जो outward act करता है, और दूसरा है electric force. In gravitation chapter, it was pseudo centripetal force and gravitational force. So यहाँ पर हमारे पास जो balance of forcing आएगा, that is Fc equal to Fe. Any pseudo centripetal force is provided by electric force. So Fc equal to Fe. So Fe is m square upon r. And electric force is k q square upon r square. So in case of hydrogen, it will be k e square upon r square. क्योंकि न्यूक्लियस में भी एक पॉजिटिव प्रोटॉन प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का माइनस ई, एक चार्ज ई. सो इट विल बी एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू ये सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन एम बी स्क्वायर अपॉन आर दैट इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज कंफर्म इट. समझ में आ गया ये? This step clear? Now if this step is clear, then it is simplification. तो R क्या होगा? इसमें सिंप्लीफाई करो, मैं लिख के बता देता हूँ. See, it is mv square upon R is 1 upon 4 pi epsilon 0 e square upon R square. मुझे R का इक्वेशन चाहिए. मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये एक एक R कैंसिल होगा और ये जो R है, ये R, उसका साइन चेंज करके इधर लेके आओ, mv स्क्वायर को इधर लेके आओ, तो ये इक्वेशन बन जाएगा. देखो R इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 mv स्क्वायर. ये ऑर्बिट रेडियस का इक्वेशन होगा. Able to understand? Please confirm it. Yes students, easily समझ में आ गया ये ऑर्बिट रेडियस का इक्वेशन. Now once you have this, then this kinetic energy equation. Kinetic energy is half mv square and potential energy is k q1 q2 upon r. ऐसा इक्वेशन होता है. सो k का वैल्यू होगा 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन 0, q1 का प्लस ई, इसका माइनस ई,
नीचे r, इट विल बी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 ये आया, ये उसका स्टेप। u का इक्वेशन कैसा है उसका स्टेप लिखना है तो लिख लो साइड पर, आपको पता चले। यस प्लीज राइट इट डाउन प्लीज। ये तो पता चल जाएगा, खाली u में थोड़ा रिक्वायरमेंट होगा। स्टेप ऐड कर दो, ये साइड पे लिख के रखो ये तीनों स्टेप, सो दैट यू नो हाउ u इज ऑब्टेन्ड। बी क्विक। Completed. Now see what happens. Then total energy E is K plus U. So ये U तो पता चला, बट ये कहाँ से आया ये डाउट है, और ये कहाँ से आया ये डाउट है। कोई मुझे हेल्प करेगा कैसे आया? Any one of you would like to try? Otherwise I'll explain. How did we get the kinetic energy equation as E square upon 8 pi epsilon 0 r? This is exactly similar to gravitation. Yes. Anybody? Yes, sir. बोलो। We substitute the value of v square from the relation of the orbit radius. Okay, okay, okay. So that's correct. See, हमने प्रीवियस पेज पे जो लिखा है ना, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आया था, देखो प्रीवियस पेज का इक्वेशन याद करो। mv स्क्वायर अपॉन r इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर था हमारे पास। तो हमको खाली इतना करना है, ये एक एक r कैंसिल करो एंड हाफ हाफ मल्टीप्लाई करो, तो ये हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन r होगा। अब समझ में आ गया आपको? जिनको नहीं पता था, जो समझ गए उनके लिए अच्छी बात है, but those who could not, now are you clear with it? So this equation we know, this we know, this also we know. So total energy will be K plus U. Total energy is K plus U. दोनों को रखो and we got the answer. इसमें क्या है कि पॉजिटिव पार्ट है K का, उसके कंपैरिजन में नेगेटिव पार्ट U का ज्यादा है. So net value of E which we are getting is negative and is minus E square over 8 pi epsilon 0 r. So total energy of electron is negative. This implies the fact that electron is bound to the nucleus. अगर E पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रॉन क्लोज्ड ऑर्बिट में नहीं घूमता न्यूक्लियस के आजू बाजू, ये E नेगेटिव होना ही चाहिए और ये है. So that completes the first part of the derivation. Could you understand this? Confirm it please. Yes. अरे वाह, सबने कंफर्म कर दिया, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है. सो हैप्पी, गुड, रियली गुड. यस प्लीज. चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं.
It is found experimentally that 13.6 V energy is required to separate hydrogen atom into proton electron. Compute the orbital radius and velocity of electron in hydrogen atom. So ये जो एनर्जी है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है E का, that value is given as 13.6 eV. तो उसमें से हमें रेडियस और उसमें से ही हमें वेलोसिटी फाइंड करना है. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू. रियलिटी में आगे जगह हम कैलकुलेशन करेंगे, ये इतना ही वैल्यू है. 13.6 eV है. सो ये जो रेडियस आएगा वो भी एक्चुअल आएगा और वेलोसिटी वो भी एक्चुअल. सो दीज आर ऑल रियल वैल्यूज जो कैलकुलेशन से आते हैं. यहाँ पे खाली हमको कैलकुलेशन करके दिखाना है कैसे मिलेगा, बस दैट्स इट. सो minus E square upon 8 pi epsilon 0 R is minus 13.6 in EV and we have to solve it in Joule. So compare it. So solve करो, उसमें से R मिलेगा. So R का वैल्यू 5.3 into 10 raised to minus 11 मीटर. एनर्जी का वैल्यू 13.6 EV था. So that will be 13.6 into 1.6. So it will be 22. So this will be also equal to 13.6 multiplied by 1.6 करो कैलकुलेटर में. 13.6 into 1.6 करो प्लीज. What is the answer that you are getting? 21.76. So this will be the exact value. So it is 21.76 into 10 raised to minus 19 joule. इसी तरह से ये जो रेडियस का वैल्यू आया है, इसमें भी आप एडजस्टमेंट करो प्लेस वैल्यू का. तो इट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम. और फिर सॉल्व करते हैं वेलोसिटी का वैल्यू. वी आर गेटिंग इट एज 2.2. So these are the actual values. ये लर्न करके रखने का. 13.6 eV which is 21.76 into 10 raised to minus 19 joule. Radius में 0.53 angstrom, that is 5. And velocity का ये value. So this is just a matter of computation. Now we go further. Any doubts? अभी किसी ने कुछ डाउट पूछा? Yes, please. देखो सम में ऐसा है, सम में इट इज गिवन दैट एनर्जी का वैल्यू इज 13.6 eV. That is 21.76. They have taken it as 22. That's the only difference. Round up कर दिया. एंड हमारे पास ये इक्वेशन है कि एनर्जी का वैल्यू होता है माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 pi epsilon 0. So you just equate it. E square upon 8 pi epsilon 0 are with minus sign is minus 21.76 into 10 raised to minus 19. So minus minus plus. Then R. So R चाहिए हमको, so it will be E square upon 8 pi epsilon 0 into 21.76 into 10 raised to minus 19. So 1.6 into 10 raised to minus 19 का स्क्वायर अपॉन. ये एक तरीका है. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही सॉल्व करो. पे अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स. यस, यू कैन ऑलवेज डू सिंप्लीफिकेशन वेरेवर पॉसिबल. देखो कैसे.
तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते थे कि इट इज ई स्क्वायर अपॉन 8π/0r, तो उसमें से आपको पता है कि 1/4π/0 क्या है, वो तो k होता है ना. So you can write it as minus 9 into 10⁹ into e square upon 2r, तो भी चाल है, एब्सोल्युटली फाइन, मैं कहीं वांधो नहीं. तो फिर आप इक्वेट करते वक्त रखो माइनस 9 into 10⁹ into e square 2r equal to minus 21.76 into 10⁻⁻19. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आर चाहिए और सब है. सो सिंप्लीफाई करके आर लेके आओ, होगा, अब हो जाएगा. बताओ प्लीज मुझे, अब हो जाएगा. बस किसी भी तरह से आप ये प्रॉपर वे में सॉल्व करो, आर का आंसर लेके आओ. दैट आर आंसर यू विल गेट इट एज 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर. उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रखो तो इट इज 0.53 into. सो दिस इज हो गया. एंड देन नेक्स्ट, फिर हमको वेलोसिटी चाहिए. वेलोसिटी कैसे लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे बोलो. अरे भाई हमारे पास वो पहले इक्वेशन था ना, mv² r is 1/4π/0 e²/r². तो ये एक आर कट हो गया, तो सीधा v² बना दो, तो v² विल बी e²/, और ये तो 9 हो जाएगा, 9 into 10⁻⁹, एंड m नीचे आएगा एंड r रहेगा, तो v चाहिए तो रूट ले लेने का. Will you be able to solve it? Confirm it. That's good. Good. चलो. Yes. Now we proceed further. See here, the emission lines are given. There is one group here called Lyman series, another group called Balmer series, then this is the third Paschen series. फिर उसके बाद फोर्थ आएगा ब्रैकेट सीरीज, और फिर लास्ट में आएगा फंड सीरीज. So Lyman series is in UV region, ultraviolet region. Balmer series is in visible region. Paschen series is in infrared region. एंड फिर उसके बाद आते हैं ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज. They are also in infrared region. So these are emission spectrum. They are corresponding to emission lines. So hydrogen में जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल टू लोअर लेवल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, it is accompanied by emission of a photon, and this photon may be of different energy levels, and accordingly it will be in either ultraviolet region or visible region or infrared region, and it might be belonging to either a Lyman or Balmer or Paschen or bracket or fund series. Have you studied this in chemistry? बस तो same thing over here, exactly same concept, कुछ नया नहीं है. But there are two types of spectrum which we consider. One is emission spectrum, ये जो अभी हम consider कर रहे हैं, that is emission spectrum, and another is absorption spectrum. Can anybody tell me the difference if you have studied in chemistry? Emission spectrum and absorption spectrum का difference अगर किसी को पता है. These last two chapters are very much overlapping with chemistry, so अगर सीखा है और याद है तो बहुत benefit होगा.
यस, अनम्यूट होके भी जवाब दे सकते हो। एनीबडी? एमिशन स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम में, दोनों में नाम में ही मीनिंग है, एनर्जी इज एमिटेड, एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो अगर इसका रिप्रेजेंटेशन आप कंसिडर करोगे ना, के, तो एमिशन होता है। whereas in the second case it is a transition from K to I. So when it goes from lower level to higher level, it is absorbed. When it comes from higher to lower, it is emitted. So that is the basic difference in emission and absorption spectrum. पता चल गया? Now, when we study the different series, spectral series, so this is a formula to be remembered. इसका डेरिवेशन बाद में आता है। 1 upon lambda is equal to R 1 upon m square minus 1 upon n square. This is the general formula. अगर 1 है तो n का वैल्यू हमेशा ग्रेटर 2 3 4 greater than m, and that will be called Lyman series. but अगर m का वैल्यू 2 है तो n का वैल्यू 3 4 5 6 होगा, that is known as Balmer series. m का वैल्यू 3 है तो n का वैल्यू 4 5 6 7, it is Paschen series. m का वैल्यू 4 है तो n का वैल्यू 5 6 7 कंसिडर करो, इस ब्रैकेट सीरीज। m का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 6 7 कंसिडर करो, that is Fund series. So m equal to 1 Lyman, 2 Balmer, 3 Paschen, 4 bracket, 5 Fund series. So it is L BP BP, and this is BA BR PA PF. So it's a dictionary sequence. पहले B आएगा, बाद में BR, पहले P आएगा, फिर PF, and this is LY. This is the sequence which you have to remember. पहला वाला अल्ट्रावायलेट में, फिर ये विजिबल में, और बाकी के 3 इंफ्रारेड में. Understood? All of you? Yes, please. Now, same thing. देखो, Palmer series was the first series to be discovered. Balmer series, first series visible region में to be declared, to be discovered. And उसमें हर एक सीरीज में, pay attention. In every series, first line is called alpha line. Second line is called beta line. Third line, gamma line. Fourth line is called delta line. Alpha, beta, gamma, delta. First line होगा तो n will be greater than m by 1. 2 का डिफरेंस होगा तो बीटा, 3 का डिफरेंस होगा तो गामा, 4 का डिफरेंस होगा तो डेल्टा. समझ में आ रहा है? सो अभी मैं अगर लिखता हूँ इक्वेशन, आप मेरे को 1 upon lambda is r 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square, तो ये कौन से लाइन का, कौन से सीरीज का है इक्वेशन? कौन से लाइन का, कौन से सीरीज का? यस, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट?
यस करेक्ट, 2 का वैल्यू आ गया यानी बार्मर सीरीज, एंड 3 है यानी विच लाइन, डिफरेंस 1 का हुआ, so it is alpha line, so it is a transition from 3 to 2. It will be belonging to which region? Answer is visible region क्योंकि बार्मर है. Understood? Next, I'm writing the equation. 1 upon lambda is r, 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square. This corresponds to transition 3 to 1. So it will be Lyman series beta second line, and it will belong to ultraviolet region. Lyman series second line beta line belonging to ultraviolet region. Understood? ये सारे इक्वेशन में हम जो r लिखते हैं, r, this r is known as Rydberg constant. Rydberg constant. And this Rydberg constant has a standard value 1.097 into 10 raised to 7 meter inverse. 1.097 into 10 raised to 7 meter inverse. It is Rydberg constant. M is known as series term. N is known as line term. Lambda is wavelength of photon emitted. Clear with the terminologies? Now you can see here all different equations are given. और फिर ये जो इक्वेशन हमने पहले लिखा था 1 upon lambda is r, 1 upon m square minus 1 upon n square, उसमें फिर एक और रिलेशन ऐड करते हैं. लैम्बडा क्या होता है इसे आपने सीखा है, वेलोसिटी इज लैम्बडा एफ, याद है. बट दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी दे मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, सो सी इज लैम्बडा एफ. तो सी इज लैम्बडा एफ, तो 1 upon lambda will be f by c. 1 upon lambda will be f by c. बट f की जगह पे ये लोग यहाँ पे सिंबल न्यू यूज करते हैं, सो मेक इट दैट वे. आई बात समझ में? c इज f लैम्बडा, तो फिर ये रखा, सो यू गेट f by c इज r 1 upon m square minus 1 upon n square. अगर हमको f चाहिए तो f will be rc 1 upon m square minus 1 upon n square. अब पता चल गया यहाँ तक? Understood everything? Now I would like to explain the same thing from the notes because it will be more structured compared to what is given over here.
These notes all of you got? तो जो स्टेप्स उधर मिसिंग होंगे ना हमारे टेक्स्ट बुक में, वो यहाँ पे ऐड हुए होंगे. देखो, आज एफसी एफई रो वैल्यू रखा, फिर ये आर का स्टेप, फिर टोटल एनर्जी में के और यू का स्टेप, फिर ये सब्स्टिट्यूशन करके ई का वैल्यू लेके आए, और फिर वो 11th में जो करवाया था वो कंपैरिजन के लिए याद करवाया. फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्स होगा तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2x होगा, दैट मीन्स की नेट एनर्जी माइनस एक्स आएगा. याद आया? ग्रेविटेशन में सेम थिंग था, यही आपको इधर भी याद करना है. देन टोटल एनर्जी इज नेगेटिव व्हिच मींस इज बाउंड टू द न्यूक्लियस. फिर ये बेटर वे समझने का, व्हाट डू यू मीन बाय लाइमैन सीरीज? लाइमैन सीरीज मींस देयर इज अ ट्रांजिशन ऑन लेवल 1, बट कहाँ से आएगा? 2 से 1 आएगा, 3 से 1 आएगा, 4 से 1 आएगा, 5 से 1 आएगा, 6 से 1 आएगा. उसमें हमें क्या देखना है? तो देखो, ये जो फर्स्ट लाइन आएगा दैट इज अल्फा, नेक्स्ट लाइन आएगा दैट इज बीटा, थर्ड लाइन आएगा दैट इज गामा, एंड फोर्थ लाइन आएगा दैट इज डेल्टा. बट ये सब लाइमैन सीरीज के हैं. यहाँ पे बामर सीरीज है, तो फर्स्ट लाइन अल्फा, सेकंड लाइन बीटा, थर्ड लाइन गामा, फोर्थ लाइन डेल्टा. ये पास्टियन सीरीज है, अल्फा बीटा गामा. गेटिंग द पॉइंट क्लियर? सो जो मैंने लिख के बताया आपको, ये पूरा टेबल सब कुछ क्लियर? देन नेक्स्ट, ये जनरल इक्वेशन जो अभी मैंने आपको बताया. फिर ये अल्फा लाइन यानी क्या? 1 का डिफरेंस, बीटा लाइन यानी 2 का डिफरेंस, गामा लाइन यानी 3 का डिफरेंस, डेल्टा लाइन यानी 4 का डिफरेंस. देन ये नाम लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट. सो व्हेन इट इज अ ट्रांजिशन 2 to 1, we know it is first line of Lyman, but it is written as Lie alpha, or it is written as H alpha line. This is the method of writing it. ये हमने नहीं सीखा था. Similarly, ये 5 to 3 है, तो it will be second line of Paschen series. So pa beta or H pa beta, H beta pa. 6 to 3 है, so it is gamma line of Paschen series. Gamma line. Clear with this concept? Confirm it, please. Then next, energy of photon is delta E is HF, it is hc by lambda in joule. ये तो प्लैंक हाइपोथेसिस ही है. E is HF is hc by lambda. So this is energy emitted, energy packet. बट ये रिलेशन जूल में होगा. बट अगर ईवी में चाहिए तो आपको खाली ये याद रखना है कि ईवी में कन्वर्जन करना पड़ता है. सो इट इज HF by E, इट विल बी hc by lambda. तब जाके ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा. पहले वो जूल में था, अब ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा. एबल टू अंडरस्टैंड? बोलो, ये समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट, सी हमने लिखा अभी कि डेल्टा ई इज hc by E lambda. ऐसा था हमारे पास इक्वेशन. देखो इधर ही ये इक्वेशन, उसमें उस इक्वेशन में आप 1 by lambda का r इंटू 1 by m square माइनस 1 by n square रख दो, तो क्या होगा? ये इक्वेशन हो जाएगा. गेटिंग द पॉइंट क्लियर? उसमें सब वैल्यू रख के HC और अपन R का सॉल्व करोगे, दैट विल बी 13.6. सो
we get delta E is 13.6 eV, 1 upon m square minus 1 upon n square. Able to understand this? Now next, for maximum energy of photon emitted, see ये different levels है. ये 1 2 3 4 5 6 7 मैंने levels दिखाए. ये 2 to 1 ट्रांजिशन होगा, एक 3 to 1 होगा, एक 4 to 1 होगा, एक 5 to 1 होगा. सिमिलरली 6 to 1 होगा और या 7 to 1 होगा. अब मुझे बताओ इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगा? Which transition will have maximum energy? Yes, it will be this. जिसमें डिफरेंस मैक्सिमम होगा ना, दैट विल बी मैक्सिमम एनर्जी 7 to 1. अब 7 से भी आगे ऐसे बढ़ते जाओ तो अल्टीमेटली इंफिनिटी होता है. सो अगर हम इंफिनिटी टू 1 कंसिडर करेंगे तो इट विल हैव मैक्सिमम एनर्जी. गॉट द आइडिया क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? एबल टू फॉलो द कंसेप्ट? सो योर clarity should be there. If we want maximum energy, n should be infinity. Higher value is preferred. तो उसमें infinity. That is known as series limit. When we take n is infinity, it is called series limit. Maximum energy to maximum frequency, as per this equation, is hf is hc by lambda. E max f max lambda mean. E max f max lambda mean. So maximum energy, maximum frequency, minimum wavelength के लिए n infinity लेने का series limit. Conceptually clear? All of you are clear with it conceptually? Good. तो उसका उल्टा लॉजिक ना, उसका उल्टा लॉजिक, मिनिमम एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, मींस मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, तो n क्या होगा? Then it should be nearest. That means it is alpha line, first line. Smallest difference होना चाहिए. Smallest difference means nearest line. Nearest line यानी alpha line. All of you understood this? All of you understood this? कैलकुलेट करने का हमारे पास बहुत अच्छा एक शॉर्टकट है. ये हमने सीखा, ये इक्वेशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बताया आपको अभी कैसे आया ये इक्वेशन. Pay attention here. Delta E is HCR by E 1 upon m square minus 1 upon n square EV ऐसा इक्वेशन है. HCR by E को आप सॉल्व करते हैं, we get 21.76 into 10 raised to minus 19 joule, which is equal to 13.6 EV. Yes. So we got the equation as delta E is 13.6
1 upon m square minus 1 upon n square ev. Now you consider transition from 2 to 1. लाइमन सीरीज, उसका एनर्जी कितना होगा? लाइमन सीरीज का एनर्जी कितना होगा फोटोन का? So it will be 13.6 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square ev. So it is 13.6 into 1 minus 1 by 4 is 3 by 4 ev. So solve करो, आंसर लेके आओ. Tell me the answer. Similarly अगर वो 3 to 1 होता तो डेल्टा E will be 13.6 into 1 upon 1 square minus 1 upon 3 square ev. So it is 13.6 into 8 by 9. 1 minus 1 by 9 is 8 by 9. So you will get the answer. चलो, tell me the answer in both the cases. आ गया होगा आपका आंसर 10.2 ev. यस, और फिर इधर 12.08. यस, परफेक्ट. सो इस तरह से कोई भी ट्रांजिशन में जो फोटोन एमिट होगा उसका एनर्जी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, और उसमें से अगर वेवलेंथ चाहिए तो वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हो. कैसे? जब एनर्जी आ गया तो वेवलेंथ तो आ ही जाएगा ना. कैसे, कोई बताएगा? तो यही दो केस में मुझे वेवलेंथ चाहिए तो कैसे मिलेगा? एक और स्टेप ऐड करके देखते हैं. देखो, एग्जैक्टली सी डेल्टा E is hc by lambda, but then it is in joule. डेल्टा इज hc by lambda in joule. बेटा, हमारे पास डेल्टा E का वैल्यू EV में है, तो then the formula should be hc upon E lambda, then it will be EV. तो हमारे पास वो वैल्यू तो रेडी है. सो लैम्बडा इक्वल टू hc by E, डेल्टा E. इसको सॉल्व करो. hc by E को सॉल्व कर दो. कितना आता है? So we'll get lambda equal to 12.41 into 10 raised to minus 7 upon delta E in EV. आई बात समझ में? अब आप प्रीवियस पेज से लेके आओ. प्रीवियस पेज से 2 to 1 वाला केस लेके आओ. 2 to 1 के केस में हमारा आंसर 10.2 EV आया था, एंड 3 to 1 के केस में डेल्टा E का आंसर हमारा 12.08 EV आया था. करो सब्स्टिट्यूट, देखो क्या होता है. सो लैम्बडा इक्वल टू 12.41 को 10.2 से डिवाइड कर दो. परफेक्ट. So 1.217 into 10 raised to minus 1 meter. So this will be 1217 angstrom. ये आंसर आ गया. नेक्स्ट केस में उसको 12.08 से डिवाइड करो. So we get lambda equal to 1.027. So we will get answer as 1027 angstrom. That's it. So ये कैलकुलेशन हो जाते हैं अच्छी तरह से. भूलना मत, मैक्सिमम वेवलेंथ यानी क्या? तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी. दैट मीन्स फर्स्ट लाइन. फिर मैं पूछता हूँ कि अगर मुझे मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, मिनिमम वेवलेंथ मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी.
So n will be infinity and it will be series limit. तो ये सब बातें सब अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ये भूल नहीं सकते. You cannot dare to forget it. Completed. ये इतना एक बार अच्छी तरह से देख लो, फिर ये नेक्स्ट डेरिवेशन है वो मैं लेता हूँ. यस, रेडियस एंड एनर्जी का डेरिवेशन उतना आज खत्म करेंगे. रेडियस एंड एनर्जी का डेरिवेशन. टेक 2-3 मिनट्स ब्रेक. यहाँ पे जितना है सब एक बार अच्छी तरह से चेक कर लो तो आगे बढ़ सकते हैं. After 2-3 minutes I'll start again.
Are you back, all of you? Yes. Yati sir, check the attendance. એ બધા કે બધી ફરવા ગયા છે? રેકોર્ડિંગ ઓન કરવું હોય તો કરી દેજો સર. Okay, very good. Is the recording on? Ayush Pandya છે, connected છે, without audio. That's great. Okay, fine. Yes, please. I want voice reply. 2-3 लोगों का voice reply चाहिए. बताओ प्लीज. साहिल क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया. हेलो. हाँ बोलो. હા સર, પેલો જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચનની લિસ્ટ હતી ને GT1 માટે, કયા ચેપ્ટર્સ ની? સર જે ફર્સ્ટ ટર્મમાં જે ચેપ્ટર્સ હતા ને GT1 માં એની માટે. ઓકે, ભલે. હવે તો નવું લિસ્ટ આપી દઈશું ફૂલ કોર્સનું, ઓલ ચેપ્ટર્સ. ફાઇન. ફર્સ્ટ ટર્મ Okay, સેકન્ડ sir. ટર્મ અલગ લિસ્ટ. ફર્સ્ટ ટર્મ સેકન્ડ ટર્મ એવું નથી આપવું, આખું ક્યુમ્યુલેટિવ ફૂલ કોર્સનું લિસ્ટ આપી દઈશું. Now pay attention. We start with important derivation of radius of Bohr orbit. Yes. Bohr's postulates किसी को याद है? Yes. Everything that you know is being used over here. Chemistry पढ़ने का फायदा physics में होता है. Anybody? Tell me. Bohr's postulates. First postulate क्या है? Stable orbit का definition होगा कुछ. कौन बोलेगा? First postulate मुझे कोई बोल के बताए. Yes. बोलो प्लीज. Anybody? नहीं आता किसी को? See, electrons move around the nucleus in well-defined stable orbits. But उसका कोई condition? Okay, साहिल ने लिखा कुछ. Electrons move around nucleus in circular orbit, well-defined circular orbits, stable orbits. Okay, next. Stable orbit कहाँ होता है? कैसे पता चलेगा कि ये stable orbit है? How do we know? उसका एक condition है. Stable orbit होने का एक condition है. हाँ बराबर एनर्जी एमिट नहीं होगा, बट क्या कंडीशन है? एनर्जी क्यों एमिट नहीं होगा? तो उसका कंडीशन ऐसा है कि इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज
इंटीजर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. Orbital angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. So L is nh upon 2 pi. L का वैल्यू mvr होता है. 11th अगर याद है तो angular momentum L, it is a moment of linear momentum, so it will be mv into r. So ये हमारा इस derivation का starting point है. When we want to derive this equation, we start with this Bohr's postulate कि mvr is nh upon 2 pi. So v का equation हो जाएगा nh upon 2 pi mr. और हमने पहले डिराइव करके रखा है यहाँ पे. देखो ये r का इक्वेशन, ये r का इक्वेशन ये रहा. e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 mv स्क्वायर याद आया. उसमें ये r के इक्वेशन में हमारे पास v का वैल्यू है. सो रख के सॉल्व करो and we got the equation of r. So this is the actual equation of radius as per Bohr's postulate, as per boson. So r का इक्वेशन है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई स्क्वायर m. r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई स्क्वायर m. उसमें से ये n स्क्वायर स्क्वायर सॉरी उसमें से ये h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है. सो बोर रेडियस कहते हैं उसको. We get r proportional to n square. N means principal quantum number. So radius is directly proportional to square of quantum number. That means कि अगर n1 होगा तो ये जो रेडियस आता है वो फर्स्ट ऑर्बिट का आएगा. 2 रखेंगे तो सेकेंड ऑर्बिट का आएगा. 3 रखेंगे तो थर्ड ऑर्बिट का. बट जिसको अभी हमने यहाँ पे बोर रेडियस करके डिफाइन करके देखा ना, this thing which we also used in that numerical. It is 0.531 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू आता है. दिस इज बोर रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस. सो r का इक्वेशन हो गया n स्क्वायर इंटू 0.531 एंगस्ट्रॉम. r का इक्वेशन हो गया n स्क्वायर इंटू 0.531 एंगस्ट्रॉम. दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस था. अगर सेकंड का चाहिए तो इट विल बी 4 टाइम्स, थर्ड का चाहिए तो 9 टाइम्स, फोर्थ का चाहिए तो 16 टाइम्स. इजीली अंडरस्टूड, क्योंकि n स्क्वायर टाइम्स होगा. सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस 4 टाइम्स, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 9 टाइम्स, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस 16 टाइम्स. फर्स्ट ऑर्बिट. यस, कंफर्म इट प्लीज. एंड जो भी डाउट है ओरली पूछो. डिराइव कैसे हुआ वो याद करना है. तो वी स्टार्टेड विद पोस्टुलेट L is mvr is nh upon 2 pi. उसमें से v का इक्वेशन है, और जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से इक्वेशन था r का ओरिजिनली डिराइव्ड, उसमें v का वैल्यू रखा और फिर r का इक्वेशन आ गया इजीली. एक्चुअली इसमें फिर से r और r स्क्वायर आएंगे, बट एक एक r कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन हमारा जो चाहिए वो बन जाएगा. और फिर उसमें कांस्टेंट्स को सॉल्व करते हैं तो दैट इज 0.531 एंगस्ट्रॉम. दैट इज कॉल्ड बोर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. और उसके बाद फिर ये समझ में आया कि n स्क्वायर का फंक्शन है. तो सेकंड ऑर्बिट यानी 4 टाइम्स, थर्ड ऑर्बिट यानी 9 टाइम्स, फोर्थ ऑर्बिट यानी 16 टाइम्स. प्लीज कंफर्म इट. आज का टॉपिक बहुत इजी है, बट आज रिवाइज करना जरूरी है. वो हाईली वॉलेटाइल है. आज का आज रिवाइज नहीं करोगे कल के सेशन से पहले तो इवापोरेट हो जाएगा. यस प्लीज. क्लियर. कंफर्म प्लीज. यस, ये ऑर्बिट होगा, ऑर्बिटल नहीं होगा. नाउ एनर्जी का इक्वेशन, ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था. देखो इधर, इट वाज e स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 r विद माइनस साइन. स्टार्ट विद दैट. और उसमें r का ये इक्वेशन रख दो, सिंप्लीफाई करो. सो यू गॉट इक्वेशन एज दिस. अगेन इसमें ये पूरा कांस्टेंट है,
सो वी गेट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू -1/n²। अब ये जो कांस्टेंट है उसको आप सॉल्व करके देखो, एंड अगेन ये फैमिलियर वैल्यू आएगा जो हमने प्रीवियस ऑलरेडी देख लिया, इट इज 13.6 eV। तो हमको ये समझ में आएगा कि एनर्जी इज 13.6 eV अपॉन n² विद माइनस साइन। यस प्लीज। कंफर्म इट प्लीज। फिर इसमें सब n का वैल्यू 1 2 3 4 रख के देखो, तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी 13.6 माइनस, सेकंड का -3.4, थर्ड का -1.51 एंड फोर्थ का -0.85। दैट मींस E2 is E1/4, E3 is E1/9, E4 is E1/16. But that's it. That's what you have to remember. और ये एक्स्ट्रा में है वेलोसिटी का डेरिवेशन। तो स्टार्टिंग में हमने जो फर्स्ट स्टेप लिखा था सेंट्रीपिटल फोर्सेस इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो कंपेयर करते उसमें v² का इक्वेशन बनाया, उसमें फिर v² का जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करके ये v का इक्वेशन बनाया। That's it. Able to understand? Confirm it. Reply by chat, reply by voice, but make sure that you understood it. Now take you back to textbook. See here. ये मैंने बताया था F सिंबल होता है। Now Bohr model of hydrogen atom, ये जो थियरी अभी हमने पढ़ा, ये पोस्टुलेट की बात हो रही थी। बोर्स फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टुलेट वेरी इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव, डोंट फॉरगेट। Bohr's first postulate is electron in an atom could revolve in certain stable orbit without emission of radiant energy. Second postulate gives that condition. Electron revolve around the nucleus only in those orbits for which angular momentum is integral multiple of h/2 pi, where h is Planck's constant. So we get equation L is h/2 pi. याद आया? थर्ड पोस्टुलेट में वो ट्रांजिशन की बात होती है कि वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूमता है, तो when it goes from one stable level to another stable level, there is a accompanied photon emission or absorption. It is emission when it goes from higher to lower, it is absorption when it comes from lower to higher. Understood? ये तीनों postulates important, understood? फिर नोटबुक में जो डेरिवेशन शुरू हुआ यहाँ से, L is mv r is h/2 pi, यहाँ से फिर उसमें वो वैल्यू रखा हमने। देखा यहाँ पे उन्होंने जो अप्रोच लिया है वो स्लाइटली डिफरेंट है। दे आर टेकिंग वेलोसिटी बेस्ड अप्रोच। हमने जो लिया है वो इजी है, बट देखो फिर लास्ट में आंसर सेम आ जाता है। ये हमारा इक्वेशन का आंसर आ गया ये R1 का। तो ये जो वैल्यू है बोर रेडियस हुआ, तो हमने कैलकुलेट करके देखा। फिर यहाँ पे एनर्जी का डेरिवेशन है, ये भी है, और उसमें भी फिर सेम थिंग, तो पहले जूल में और फिर ईवी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो टेक्स्ट बुक में जिस तरह से दिया है ना, वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा थोड़ा डिसकंटिन्यूटी है, तो प्रॉब्लम होता है। सो वी मेड इट सिंपल फॉर यू। इट इज एज पर द ओल्ड एडिशन ऑफ टेक्स्ट बुक। उसमें वी हैव नॉट डन एनीथिंग, इट्स बेस्ड ऑन अनदर रेफरेंस व्हिच इज इजियर फॉर यू टू फॉलो। rather than going from velocity approach, we are going from radius approach. So यहाँ पे ये पूरा एनर्जी का डेरिवेशन हो गया, और फिर ये एनर्जी लेवल्स जो मैंने ड्रॉ करके अभी आपको समझाया था कि एनर्जी का इक्वेशन आता है, इट इज -13.6 eV अपॉन n²। तो n is 1, it is -13.6 eV. 2 is -3.4 eV. 3
4 is minus 0.85 eV. And you will find the same thing over here if you see it very carefully. देखो, ये first, ये second, ये third, ये fourth. First is called ground state. All higher levels are called excited state. And if electron from anywhere to infinity, that is called ionization. But if you take electron from 1 to 2, or you take it to 3, then that is called excitation. Infinity le jayenge, that is called ionization. First floor से second floor जाना, first floor से third floor जाना, first floor से fourth floor जाना, first floor से चले जाना. These are excitation. This is ionization. Understood the difference between excitation and ionization? So excitation के लिए जो energy required होगी, that is called excitation energy. Ionization के लिए जो energy required होगी, that is called ionization energy. So यहाँ तक हमने सब कुछ थियोरी खत्म करना आज. अभी एक खाली छोटा सा पार्ट बाकी है जिसमें ये फॉर्मूला डिराइव होता है. वो मैं आज नहीं लूंगा, वो मैं कल के सेशन में समझाऊंगा. उतार नदी कर भी. देखो यहाँ पे भी देखो, ये लोअर लेवल से हायर लेवल जाता है. दैट मीन्स दिस इज एब्जॉर्प्शन वाला केस. इसमें हायर से लोअर आता है. दैट मीन्स इट इज एमिशन वाला केस. एबल टू अंडरस्टैंड? फिगर ए रिप्रेजेंट एब्जॉर्प्शन. Figure B represents emission. Theory up to this page is over. Go through it. हमारा टेक्स्ट बुक में when we started, yes, पहले दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेज जितना खत्म हुआ था यहाँ तक. आज शुरू किया 6 पेज से. 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक खत्म होता है. नहीं, आगे 8, 9 पेज खत्म हुआ. So nearly 3/4 of the chapter is over. अभी एक लाइन स्पेक्ट्रा का टॉपिक है. फीडी ब्रोगली and the chapter gets over. So कल तो हमारा चैप्टर का थियरी खत्म हो जाएगा. And then we'll start with numerical and MCQ. हमने अब तक जितना सीखा, यस, हमने अब तक जितना सीखा उसमें से कोई भी न्यूमेरिकल बाकी रहा? 4th and 5th चेक कर लेते हैं. देखो क्या है 4th में और क्या है 5th में इलस्ट्रेशन में. According to classical electronic theory, calculate the initial frequency of the light emitted by electron revolving around a proton in hydrogen atom. हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. Yes. So F is V upon 2 pi r. ये हमने रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में सीखा था. अगर आपको याद है, V is omega r. Omega 2 pi r. So F V upon 2 pi r. 11th standard rotational motion chapter. एंड हमारे पास ऑलरेडी V का वैल्यू तो आया है. जब हमारा रेडियस का वैल्यू था 5.3 into 10⁻⁻11, तो V का वैल्यू 2.2 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड आया था. तो उसके बेसिस पर F का वैल्यू 6.6 into 10⁻15 हर्ट्ज आता है. स्टैंडर्ड वैल्यूज है सब. बट ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, तो वो हो सकता है, इजीली हो सकता है. देन 5th क्वेश्चन. તમારું કેમેસ્ટ્રી સારું હોય ને તો આ ચેપ્ટર તો મજા આવે. યસ. 5th चैप्टर में क्या है? अरे 5th क्वेश्चन में क्या है? 10 kg का सैटेलाइट है. सर्कल द अर्थ एवरी 2 आवर इन एन ऑर्बिट हैविंग रेडियस 8000 किलोमीटर. Assuming that both angular momentum postulate applies to satellite, जैसा कि इलेक्ट्रॉन में होता है, find the quantum number. या थोड़ा क्वेश्चन. They have made a fusion or other confusion of electron orbit and gravitation.
થોડું થોડું કેમિસ્ટ્રી આવડે ને તો બાકીનું ફિઝિક્સ થી આવડી જાય. ઇટ્સ ઓલવેઝ સિનर्जी. केमिस्ट्री आता है तो फिजिक्स में फायदा होगा, फिजिक्स में है तो उसका फायदा केमिस्ट्री में होगा, क्योंकि चैप्टर तो कॉमन है. अब ये सब में ग्रेविटेशन और ये एटम्स के कंसेप्ट का कंफ्यूजन नहीं, फ्यूजन है. यू नो mvr is nh upon 2 pi, angular momentum mvr is nh upon 2 pi. तो हमको n फाइंड करना है, तो सीधा n का इक्वेशन बनाओ. यस, बट उसके लिए थोड़ा सा हमारे पास मास है, रेडियस है, वेलोसिटी नहीं है. सो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन था हमारे पास, लिखा था v is ओमेगा 2 pi f, उसको आप 2 pi और वो रख के फिर आपको सॉल्व करना है. एक्सट्रीमली लार्ज, दैट मीन्स ऐसा हो ही नहीं सकता, दैट इम्पॉसिबल, बिकॉज दिस क्वेश्चन ऐसा रियलिटी में थोड़ी होता है. तो yes, this point we have completed exactly, and करके न्यूमेरिकल है, क्यों भी कर सकते, वो आपका चॉइस. कंफर्टेबल विद बोथ ऑप्शंस. क्यों में कैसे हो आपको कुछ पूछो. Anything to ask from your side, you can ask. No? Thank you then. See you tomorrow. Good. God bless you.